زندگی کی کہانی ہر شخص کی بہت مختلف ہوتی ہے، مگر ایک چیز ہر ایک کہانی میں مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے انسان کا خود غرض ہونا۔ ہم سب کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر تو خود غرض بن ہی جاتے ہیں۔ میری کہانی بھی خود غرضی پر مشتمل ہے۔ میں بلکہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف خود غرضی میں گزرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والے انسانوں میں سے تھا۔ مجھے دوسروں کی بہت کم ہی پرواہ رہتی تھی۔ میں ہر وقت بس اپنے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ رشتہ دار، دوست اور عزیز و اقارب سب مجھے اور میرے رویے کو ناپسند کرتے تھے، اور مجھے اس سب کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ مجھ میں بہت سی بری عادتیں تھیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کی ہرگز بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کہتے ہیں نا، انسان اپنی مستی میں مست رہتا ہے، اپنے آس پاس رہنے والوں سے بے پرواہ رہتا ہے، اسے زندگی میں کچھ کرنے کا شوق نہیں ہوتا، وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، مگر ایک دن اسے زندگی بہت عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ بچپن کی محرومیاں بھی انسان کو عجیب مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ میں نے بھی اپنا بچپن بہت سی محرومیوں میں گزارا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کے دن گلیوں میں کھیلتے کودتے گزارے تھے۔ میری دوستی میری عمر سے بڑے لڑکوں سے تھی۔ میں ان کے ساتھ رہ کر جلد ہی غلط صحبت کا شکار ہو گیا تھا۔ میری ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے سائے میں پلا بڑا تھا۔ میری ماں کی موت کے کچھ وقت بعد ہی میرے باپ نے ماں کی کزن سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ عورت انتہائی لالچی تھی اور بد زبان بھی بے حد تھی۔ اس نے صحیح معنوں میں میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ہر وقت وہ کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ میرا نام نوید ہے اور میری زندگی کی تلخ حقیقتوں کے بارے میں تھوڑا بہت تو آپ جان ہی چکے ہوں گے۔ میرے لیے میرا اپنا آپ سب سے زیادہ اہم رہا ہمیشہ۔ میں دوسروں کے بارے میں کم ہی سوچتا تھا۔ میرا بچپن بہت سی محرومیوں سے بھرا پڑا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی تھی اور ہر مرحلے پر آتی تھی۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا، مگر پھر بھی وہ میرے کو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ جب سے ابا نے دوسری شادی کی تھی، تب سے اس نے گویا مجھ سے منہ ہی موڑ لیا تھا۔ میں ماں کے ہوتے ہوئے اسکول پڑھنے چاہتا تھا، مگر ماں کے بعد اسکول نہیں گیا۔ ابا نے کبھی میری پڑھائی کا سوچا نہیں تھا، نہ ہی انہیں میری اچھی تربیت کی کوئی فکر تھی۔ میں کیا کھاتا ہوں، کیا پیتا ہوں، کس طرح رہتا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں، یہ سب ابا کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ نہ انہوں نے ان چیزوں کی فکر کی تھی کبھی۔ وہ میرے بارے میں کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ میری سوتیلی ماں کو یہ پورا کنٹرول حاصل تھا کہ وہ مجھ پر ہر طرح کا ظلم کر سکتی ہے۔ مجھے آج بھی اپنے باپ کے وہ الفاظ یاد تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ جو بھی کرو، مارو پیٹو، کچھ بھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ ابا کا کہنا تھا کہ یہ تمہاری اچھی تربیت کے لیے ٹھیک ہے، وہ تمہاری ماں ہے، اسے تمہاری ماں بنا کر لایا ہوں، جو بیوی کرے گی تمہاری بھلائی کے لیے ہی کرے گی۔ مجھے ابا کی ان باتوں سے سخت دکھ ہوا تھا، مگر انہیں اس بات کی اور میرے جذبات کی قطعاً کوئی پرواہ نہ تھی۔ تبھی میں نے ابا کی ہر بات کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ وہ جس بات سے، جس چیز سے مجھے منع کر رہے، میں ضد میں وہی کرتا۔ ابا مجھے جیب خرچ بھی نہیں دیتا تھا۔ میں کئی سال ایک دو سوٹ میں گزار دیتا تھا۔ چپلیں گھس گھس کر ختم ہو چکی تھی، اور وہیں خود میری سوتیلی ماں کو اور اس کے سارے رشتہ داروں کو مہنگے کپڑے پتہ نہیں کہاں سے لے کر دے دیتا تھا۔ مجھے ابا کے اس دوغلے پن سے سخت چڑ تھی۔ میں بس یوں ہی گلیوں میں کھیلتے کودتے بڑا ہوا۔ جیسے جیسے عمر کی منزلیں طے کرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے میری عادتیں خراب ہوتی جا رہی تھیں، اور اب تو میں محلے کے آوارہ اور بدماش لڑکوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ ان میں سے اکثر کم عمری سے ہی سگریٹ کی لت کا شکار تھے۔ میں بھی کبھی کبھی مستی میں ان کے ساتھ 2-3 کش لگا لیتا تھا۔ انہی مستی میں موچ میں لگائے جانے والے 2-3 کشوں سے مجھے سگریٹ کی ایسی لت لگی کہ میں باقاعدہ سگریٹ خرید کر پینے لگ گیا۔ میری سعادت کی خبر جب ابا کو پہنچی تو ابا نے مجھے خوب مارا پیٹا۔ وہ ابا جو مجھے کبھی مڑ کر پوچھتا بھی نہیں تھا، وہ بس اب محلے کے لوگوں کے منہ سے میری سعادت کے بارے میں بار بار سن کر میرے اوپر آ کر غصہ نکالنے لگا۔ ابا کی مار اور سوتیلی ماں کے مظالم نے مل کر مجھے بہت ہی زیادہ خود سر بنا دیا تھا۔ میں نے مار کے ڈر سے سگریٹ چھوڑ دینے کی بجائے مزید پینا شروع کر دیے تھے۔ محلے کے لوگ آتے جاتے مجھے آوارہ اور نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے۔ میری سوتیلی ماں پورا دن گھر کے دروازے پر کھڑی محلے کی عورتوں سے میری اور میری ماں کی برائیاں ہی کرتی رہتی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آتا تھا، مگر میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تھی اتنی بد زبان کہ اس کے منہ لگتے ہوئے کوئی 10 بار سوچے۔ جب میں چھوٹا تھا تب تو وہ کسی بھی طرح مجھ پر اپنا حکم چلا لیتی تھی اور مار پیٹ بھی کر لیتی تھی۔ اکثر تو میرا کھانا ہی بند کر دیتی تھی، جس سے مجھے اس سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میرے خاندان کے لوگ، میرے قریبی رشتہ دار جو کہ صرف میرے نام کے ہی رشتہ دار تھے، جب بھی ہمارے گھر آتے
मुझे ही कहते कि वो बहुत अच्छी औरत है, तुम्हें संभाल रही है, तुम इसकी कदर करो। ये सब और इस तरह के कई ज्ञान हर आता जाता बंदा मुझे देता था। मैं चुपचाप सबकी लंतराइयाँ सुनता रहता था। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं सबको इनकी असलियत दिखाऊं। मेरे रिश्तेदार भी ऐसे ही थे, मतलबी और खुदगर्ज, सब के सब बस मतलब के लिए ही मुंह लगाते थे। मुझे हर एक से शदीद चिढ़ थी। मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था और वो लोग भी मेरी कोई ज़्यादा फिक्र नहीं करते थे। मैं खुद भी सबसे दूर ही रहता था। ईद पर कोई रिश्तेदार 10-20 रुपए पकड़ा देता था और फिर साल पूरा एहसान जतलाता रहता। सब मुझे तरस भरी निगाहों से देखते थे। हर एक मुझे देखकर अफसोस भरे लहजे में बातें करता था। मुझे लोगों की इन तरस भरी तज़दीक उड़ाती अफसोस करती निगाहों से सख्त किस्म की नफरत थी। मैं इन सब से दूर रहना चाहता था। इनकी बातें तकलीफ देती थी मुझे, बहुत ज़्यादा। पूरे ख़ानदान में अगर मैं किसी की बात सुनता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बड़ा कज़न था। मैं उनकी अक्सर बातें मान लेता था। वो सबसे अलग थे। कभी भी उन्होंने मुझे दूसरों की तरह डांटा नहीं था। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे वो। मेरे बड़े ताया के बेटे थे। अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे वो। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना पसंद था। वो सबके कहने के बावजूद भी कभी भी मुझे कुछ नहीं कहते थे। मैं अक्सर उनके घर जाता था। वो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ अलग घर में रहते थे। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया था कि मैं उनके घर ना आया करूं, उनके बेटे को ना उठाया करूं, वरना तो खानदान का कोई भी बंदा मुझे अपने घर में नहीं आने देता था। सब मुझे भूखा और ख़राब कहते थे, सिवाय ज़ुहैब भाई के। मैं अक्सर जब घर से खाना नहीं मिलता था तो इनके घर जाकर खा लेता था। वो मेरे लिए कपड़े जूते भी लाते थे। मैं अगर अपनी माँ के बाद किसी को खुद के करीब समझता था तो वो बस यही थे। उन्होंने भी मुझे कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया था। वो मेरी हर मुकाम पर हौसला अफजाई करते थे। मुझे कहते थे कि पढ़ो लिखो, हुनर सीखो। इनकी बात मान के मैंने एक जगह काम सीखना शुरू कर दिया। सालों पर साल गुजरते गए। अब्बा की मौत हो गई। अम्मा ने घर से निकाल दिया मुझे। मैंने दर दर की ठोकरें खाई। फिर एक होटल खोलने का सोचा। कुछ वक्त में मैंने अपना छोटा सा होटल खोल लिया था। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि एक दिन कुछ अजीब हुआ। मैं अपनी मखसूस जगह पर बैठा था। ये एक होटल था। सामने मसरूफ तरीन रोड थी, शॉपिंग मॉल्स थे, शाम का वक्त था, खूब गहमा गहमी थी, गोया पूरा शहर वहाँ निकल आया हो। मैं सामने होटल पर बैठा था। ये मेरा मामूल था। मैं हर शाम इस चाय के होटल पर आता था और घंटों यहाँ बैठे बैठे गुजार देता था। हालांकि मेरा अपना भी होटल था, मगर मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता था। मैं आज भी मामूल के मुताबिक यहीं बैठा था और कड़क चाय पीते हुए मैं सामने ही देख रहा था। एक लड़की की पुश्त मेरी तरफ थी। वो वहाँ रोड क्रॉस करने खड़ी थी। आसपास से गाड़ियाँ तेजी से जन की आवाज़ से गुजर रही थीं। वो लड़की बार बार रोड क्रॉस करने की कोशिश करती, मगर कोई ना कोई गाड़ी अचानक सामने आ जाती। मैं खामोश बैठा चाय की चिस्कियाँ लेता उसे देख रहा था। उसी वक्त कुछ लोग और भी वहीं आकर खड़े हो गए। वो सब रोड क्रॉस करने लगे तो वो लड़की भी तेजी से उनके साथ आगे बढ़ी। इसी पल जन से एक ट्रक गुजरा और कुछ पल को वो लोग मुझे नजर आना बंद हो गए। जब ट्रक गुजर गया तो पीछे ट्रैफिक रुकने लगी। मैं उठकर एकदम से आगे आया तो देखा कि रोड पर हर जगह हजूम इकट्ठा हुआ था। मैं रश देखकर एकदम रुक गया। दूर से मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि वहाँ क्या हुआ है। मैंने थोड़ा आगे होकर देखा तो वहाँ सड़क पर कोई लड़की ऊंधे मुंह गिरी पड़ी थी। मैं इसके कपड़ों से पहचान गया था। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों के सामने बस लम्हों की बात थी। वो अब जमीन पर पड़ी थी, खून में लथपथ, और आसपास सब खामोश तमाशाई बने खड़े थे। कुछ नौजवान मोबाइल निकालने, वीडियो बनाने में मसरूफ थे। कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था, ना ही एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। मुझे इन सब पर इंतहाई शदीद गुस्सा आया। वैसे तो मैं किसी के मामलात में बोलता नहीं था, मगर इन लोगों की ऐसी बेहिसी देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तेजी से लोगों के हजूम को चीरता हुआ आगे को बढ़ा और इस लड़की के करीब बैठकर उसे सीधा किया। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और आसपास भी खून ही बिखरा पड़ा था। मुझे समझ नहीं आई कि क्या करूं। तभी मैंने चीख कर कहा कि कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। मेरे पीछे खड़े लड़के ने एम्बुलेंस को कॉल करके आने को कहा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। मैं उसके साथ ही क्या, इस लड़की का खून मुसलसल बह रहा था। वो बेहोश थी। न जाने क्यों मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। अभी बस कुछ लम्हे पहले तो मैं उसे देख रहा था और अब वो मेरे सामने यूं इस हाल में थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया बेहद। मेरा शिद्दत से दिल चाहा कि वो पल वापस आ जाए और मैं उसे खुद रोड क्रॉस करा दूं। मैं खुद को मुसलसल इल्ज़ाम दिए जा रहा था। हस्पताल पहुंचते तक मैं बहुत अजीब सी कैफियत से गुजर गया। मैं नहीं जानता था कि मैं क्यों इसके लिए परेशान हो रहा हूँ। मैं उसे सीधा अंदर लेकर गया।
डॉक्टर इमरजेंसी में ले गए उसे। मैं बाहर बैठा बस उसकी खैरियत की दुआएं मांग रहा था। कई घंटे गुजर गए थे। मैं बैठा इंतजार कर रहा था। फिर कहीं एक तवील वक्फे के बाद जाकर इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स बाहर आए। उन्होंने कहा कि अब वो खतरे से बाहर हैं, अगले 1-2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। मैं बेख्तियार सजदा शुक्र बजा लाया। उसे रूम में शिफ्ट किया गया। मैं उसके पास मिलने गया तो वो खामोश आंखें बंद किए लेटी हुई थी। मैं उसके पास बैठकर चुपचाप उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर ज़मानों की उदासी और थकन रकम थी। मुझे वो अपने जैसी लगी, अकेली और खामोश। मैं कितनी देर वहाँ बैठा रहा मुझे नहीं पता। मैं वहीं बैठे बैठे सो गया था। नींद में जाने से पहले मैंने उसे देखा था, तब तक वो होश में नहीं आई थी। मैं जब दोबारा उठा तो बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ था। मैं एकदम चौंक कर सीधा हुआ। मेरी नज़र सामने पड़ी तो वो अब भी सो रही थी। मुझे उसकी इतनी लंबी बेहोशी पर तशवीश हुई तो मैंने फ़ौरन से नर्स को बुलाया और उसे चेक करने को कहा। तो उसने बताया कि आप परेशान ना हो, उन्हें रात ही होश आ गया था, अब ये दवाओं के ज़ेरे असर सो रही हैं। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं उठाया था किसी ने? उसने कहा कि पेशेंट ने मना किया था और फिर वो वहाँ से चली गई। मुझे अपने इस तरह इतनी देर बेखबरी की नींद सोने पर अफसोस हुआ। मैंने अपनी हालत देखी। मैंने अब तक वही खून आलूदा कपड़े पहन रखे थे। मैं तेज़ी से उठा और घर के लिए निकल गया। मेरा इरादा घर जाकर कपड़े बदल कर दोबारा वापस अस्पताल आने का था। मैं इस लड़की के जागने पर उससे उसके घर का पूछकर बाहिफाजत उसे उसके घर पर पहुंचाना चाहता था। मैं तैयार होकर बिना कुछ खाए पिए वापस आया, मगर मुझे पता चला कि वो तो चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। कई साल मैं उसे भूल नहीं पाया। बस मुझे जुए की लत लग गई थी। मेरा बहुत नाम था जुए में। एक दिन मुझे कुछ अमीर लोगों के साथ खेलने का मौका मिला। मैं इनकी मखसूस करदा जगह पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर सारे के सारे अमीर तरीन आदमी बैठे हुए थे। हर एक अपनी दौलत के नशे में चूर था। ये वो लोग थे जिनके पास हराम माल की कमी नहीं थी और वो उसे हराम कामों में ही इस्तेमाल कर रहे थे। वो लोग मिनटों में बैठे बैठे कई लाख हार जाते थे। इन सबको जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी और वो नशे की हद तक इसके आदी थे। मैं आज पहली बार उनके साथ खेलने आया था। मेरा दोस्त जो मुझे यहाँ लाया था बोला ये सब बहुत बड़ी बड़ी असामियाँ हैं, तुम बहुत ध्यान से खेलना इनके साथ, अगर हार गए ना तो उम्र भर इनके गुलाम बन के रहना पड़ेगा। मैंने कहा तुम फिक्र ही ना करो, मैं इस मैदान का माहिर खिलाड़ी हूँ, तुम बस देखते जाओ। वहाँ बैठे सारे मर्द मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कि मेरा मजाक बना रहे हों। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं ये नहीं खेल सकता हूँ या मुझे बिल्कुल भी खेलना नहीं आता। वो ऐसे हंस रहे थे मुझ पर कि जैसे मैं कोई बेवकूफ़ इंसान हूँ। हो सकता है कि शक्ल से उन्हें मैं यूं ही दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इनकी तरह महंगे तरीन कपड़े जेबतन नहीं कर रखे थे, मगर उन्होंने अब तक मेरा खेल नहीं देखा था। इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं किन लोगों के साथ खेलता आया हूँ और इस खेल का कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ। मैं इस वक्त उनकी हंसी को नज़रअंदाज करके उनके साथ खेलने के लिए बैठ गया। मेरी इतनी हिम्मत पर उनमें से एक ने मुझे कहा कि सोच लो बरखुरदार, ये ना हो अपने आप को भी हार जाओ। फिर वो ज़ोर ज़ोर से कह के लगा लगा कर हंसने लगे। मेरा दिल तो किया कि इनके दांत तोड़ दूँ, मगर फिर मैंने ज़ब्त किया और कहा पहले एक बारी खेल कर तो देखो, फिर खुद ही फैसला कर लेना। मेरे इस तरह कहने पर वो मेरे लहजे की मजबूती पर एक दूसरे को देख कर रह गए। फिर हमने खेल शुरू किया। मुझे खेलते हुए शुरू में अगले को जीत का एहसास दिलाकर आखिर में बाजी पलट देना बहुत ज़्यादा पसंद था। न जाने मुझे कैसी तस्कीन मिलती थी इस सब में। मैं इनके साथ खेलते हुए भी यही करने लगा। शुरू में उन्हें लगता रहा कि वो जीत जाएंगे और इसी खुशी में वो मुझ पर हंस भी रहे थे बहुत। मैंने उनकी मस्ती में उन्हें हंसते दिया और फिर आखिर में मैंने हंसपे आदत पूरी बाजी ही पलट दी, जिस पर इन सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मैंने कहा तो कैसा लगा मेरा खेल? इनमें से एक के मुंह से निकला तुम तो मंजे हुए खिलाड़ी हो मगर लगते नहीं हो। क्या बात है तुम्हारी? इतना अच्छा खेलना कहाँ से सीखा और अब तक कहाँ खेल रहे थे? इसके पूछने पर मैंने उसे एक जगह का नाम बताया जो काफ़ी खतरनाक लोगों की जगह थी। वो अब मुझसे काफ़ी मरूब नजर आ रहे थे और यही तो मैं चाहता था। मैं जानता था कि ये काफ़ी मोटी असामी है, इसीलिए उनके साथ खेलते रहने में मुझे बहुत फ़ायदा होगा। तभी मैंने अपनी बाकी सारी जगहों पर जाना छोड़ दिया था और अब बस यहीं आकर इनके साथ खेलता था और ढेर सारे पैसे जीत जाता था। मैं अब तक सिर्फ एक बार हारा था और वो भी बस इस वजह से कि मेरा दिमाग किसी और की तरफ था। मैं ज़हनी तौर पर यहाँ नहीं था। कभी कभी किसी की यादें इंसान को बहुत ही दुख देने लगती हैं। यादें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती कभी भी, और इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से इतना नहीं थकता जितना कि किसी की यादों से थक जाता है। मैं भी अक्सर माजी की यादों में खोकर अपने हाल से बिल्कुल ही कट जाता था। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं कैसे खुद को इन सब चीज़ों से बाहर निकालूं।
मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, ना ही किसी को ज़्यादा देर में बर्दाश्त करता था। मेरा मिजाज ही ऐसा था कि मुझे अपने आसपास लोगों का हजूम पसंद नहीं था। मेरा मिजाज बहुत तलख था, तो लोग वैसे भी दूर ही रहते थे मुझसे। मुझ में लाख बुराइयां थी, मगर मैं कभी किसी लड़की पर गलत निगाह नहीं रखता था। मुझे लड़कियों में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी ज़िंदगी में बस एक लड़की आई थी और बस वही मेरी पूरी ज़िंदगी बन गई थी। इसके बाद मुझे कोई नहीं भा सके। वो एक ही थी और मुझे बहुत अजीज थी, बहुत ज़्यादा। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैंने अपने होटल पर मज़ीद तवज्जो देना शुरू कर दी। वो अच्छी तरक्की कर रहा था। मैं अमीर अमीर लोगों के साथ बैठकर खेलने लगा। मैं आज फिर जुआ खेलने बैठा हुआ था। सामने वाले आदमी ने शर्त लगाई कि अगर वो हार गया तो इसकी बीवी बेटी मेरी। कुछ देर बाद वो वाकई में हार गया। इसकी बीवी बेटी लाई गई तो मैं ये देखकर परेशान हो गया कि वो दोनों पर्देदार थीं। इनमें से बड़ी उम्र की औरत ने मुझे कहा कि हमारी इज्जत ना खराब करना। मैंने कहा ठीक है, मगर इस लड़की का निकाह मुझसे कर दो। वो लोग मान गए। मैंने तैयारी शुरू की। आज मेरी शादी थी। बाज़ दफ़ा हम कितने खुश नसीब हो जाते हैं कि हमें हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स मिल जाता है, जिससे हमें मोहब्बत होती है। वो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता बनने जा रहा होता है, मगर हर पल दिल में एक डर रहता है कि कहीं ये सब ख्वाब ही ना हो, आँख खुलते ही टूट ना जाए। महबूब पर भरोसा होता है, मगर डर भी रहता है कि कहीं छोड़ ना जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं निकाह के बाद जब अपनी बीवी से मिलने गया तो वो नकाब में थी। मेरे पास आकर बैठी और बोली, मुझे माफ़ कर देना। उसने फिर अपना नकाब उठाया तो उसको देखकर मेरी सांसें थमने लगी थी, क्योंकि मेरे सामने बैठी वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसे सालों पहले मैंने देखा था। वो आज भी वैसी ही थी। मैं तो बस उसकी आंखों पर मर मिटा था। उसकी बड़ी बड़ी सहार आंखें, जिन्होंने मुझे अपने साथ गोया बांध लिया था। कितने साल मैंने उसकी याद में गुजार दिए थे। वो तो खुद अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई थी, मगर मैं उसे कभी भूल नहीं पाया था। उसे मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी उसकी यादों से निकलने को सोचा भी नहीं था। मुझे उसकी याद में सुकून मिलता था, बस, बहुत ज़्यादा। अब वो यूं मेरे सामने बैठी हुई थी, वो भी मेरे निकाह में। अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं निकाह के वक्त ही चौंक जाता, मगर मैं तो इसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं था, इसलिए मैंने उसे पहचाना नहीं। वो मेरे सामने बैठी थी और मैं बेखुदी में उसे तके जा रहा था। सालों मैंने उसकी याद में गुजारे थे और अब वो यूं मेरे सामने बैठी थी तो मैं हैरत और खुशी से गंग हो गया था। वो मेरे लिए कितनी अहम थी ये मैं ही जानता था। वो मेरी सांसों में इस जिंदगी बनकर महकती थी। बाज़ दफ़ा तो मुझे यूं लगता था कि मेरी ज़िंदगी में उसके सिवा कुछ अहम नहीं। मेरे लगातार यूं बेखुदी से उसे तकते रहने पर वो थोड़ी हिचकिचाहट का शिकार हो गई। मैंने खुद को संभाला और कहा कि तुम तो वो बोली, हाँ मैं। ये बहुत लंबी दास्तान है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हैं और मुझे आपकी चाहत बुरी नहीं लगती, मगर मैं बहुत मुश्किल हालात में थी। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे हर जगह ढूंढा होगा और आपको मुझ पर शदीद गुस्सा भी होगा कि मैं न जाने कहाँ चली गई थी यूँ अचानक, मगर मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। मेरा नाम इफ्रा है। मैं एक दूर दराज गाँव की रहने वाली हूँ। मैं एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम सब एक साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, मगर बाद अज़ां कुछ ख़ानदानी रंजिशों की वजह से हम अलग हो गए। दरअसल हम सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। चाचा ताया की फैमिलीज़ के अलावा फुफ्फो मामू वगैरह की फैमिलीज़ भी हमारे साथ ही रहती थी, क्योंकि हमारे यहाँ ख़ानदान में ही शादियाँ की जाती थी ज़्यादा। इसकी एक वजह थी कि ख़ानदानी जायदाद बाहर ना जाए। अजीब किस्म के रस्म व रिवाज थे हमारे और सभी इनकी पाबंदी करते थे। मेरे फुफ्फो का बेटा जिसने शहर से आला तालीम हासिल की थी, उसकी शादी मेरे से तय थी, मगर उसने शहर में कोई लड़की पसंद कर रखी थी और सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली थी, जिस पर सब घर वालों ने उससे ताल्लुकात तोड़ लिए थे। मगर बाद अज़ां सब उससे वापस बातचीत करने लगे थे। मुझे इस सब से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वैसे भी ये रिश्ता मेरे से पूछकर तो नहीं जोड़ा गया था और मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। मेरे जोड़ का ख़ानदान में कोई नहीं था। तभी मेरी शादी हमारे ख़ानदान के सबसे अयाश मर्द के साथ की जाने लगी थी। वो एक नंबर का अयाश था। पहले ही 2 बीवियों को तलाक दे चुका था। दोनों शादियां ख़ानदान से बाहर की थीं। ख़ानदानी बीवी अब तक कोई नहीं थी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो सही मायनों में हैवान था। इन्हीं दिनों किसी छोटी सी बात पर मेरे अब्बा और ताया के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते बहुत शदीद हो गया और ये इतना बढ़ गया कि हमारे ख़ानदान जो अरसे से कई पुश्तों से साथ रह रहा था, टूट कर रह गया। ताया ने हमें हवेली से निकाल बाहर किया। अब्बा के लिए तो हम वैसे ही बोझ ही थे, और अब जब हवेली पर ताया ने कब्जा कर लिया था तो अब्बा खुद हमें छोड़कर अपने किसी दोस्त के साथ बाहर चले गए थे। मैं और अम्मी अकेली थी। अम्मा को मेरे चचा ने अपने एक दोस्त के यहाँ कुछ दिन जाकर रहने को कहा। कुछ दिन तो हम उधर रहे, मगर बहुत ही गलत नीयत का आदमी था।
हम पिछले कई महीनों से उसके साथ ही रह रहे हैं। सालों पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो तब मैं यहाँ शहर में शॉपिंग के लिए आई थी और तब मैं घर वालों के साथ थी। मैं रास्ता भूल गई थी और रोड क्रॉस करते हुए अचानक वो हादसा हो गया था। मैं रात में होश में आई तो आपको देखा। आपको नहीं जानती थी। फिर मैं सुबह आपके चले जाने के फौरन बाद घर वालों के साथ चले गए। मैंने उन्हें कॉल करके बुला लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों को ये पता चले कि मुझे कोई मर्द यहाँ लाया है और आपने मेरे साथ नेकी की थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे ढूंढेंगे, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे यही सही लगा था कि मैं बिना किसी मुलाकात के वहाँ से चले जाऊँ, मगर मैं आपको कभी भी नहीं भूल पाई थी। जब उस आदमी ने बोला कि तुम दोनों को मैंने जुए में हार दिया है तो मैं और अम्मी तो बहुत खौफजदा हो गए थे। उसने आपसे झूठ बोला कि अपनी बीवी और बेटी को देगा। उसकी बीवी उसको अपने पाँव की जूती भी नहीं समझती है। आपको देखकर मुझे थोड़ा हौसला हुआ क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। मैं जानती थी कि आप मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मैंने उस दिन उससे वादा किया कि मैं तुम्हें कभी किसी किस्म का दुख नहीं पहुंचने दूंगा। मैं, इफ्रा और उसकी माँ, हम तीनों अब साथ ही रह रहे थे। उसकी माँ बहुत अच्छी थी। मेरी माँ की कमी एक लंबे अरसे बाद जाकर पूरी हो रही थी। वो बहुत ख्याल रखने वाली, बहुत ही मेहरबान औरत थी। हमने एक नई जिंदगी मिलकर शुरू की। मेरा होटल बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने अब जुआ खेलना भी छोड़ दिया था। ये लत छोड़ना बहुत मुश्किल था, मगर इफ्रा के कहने पे मैंने ये भी छोड़ दिया था। शुरू में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। अक्सर मेरा दिल करता था कि मैं जुआ खेलने जाऊं पुराने लोगों के साथ, मगर फिर मैं खुद को समझाता कि मैं इस राह पर दोबारा नहीं चलना। अक्सर ऐसा भी होता है कि पुराने साथी खुद ही मेरे को आकर बोलते कि हमारे साथ चलो, मगर मैं नहीं चाहता था। सबको साफ मना कर देता था। इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर रही थी। इफ्रा के साथ मैं बहुत खुशियों भरे लम्हे गुजार रहा था। मेरे रिश्तेदारों ने अब मेरी तरक्की देखकर और खुशहाल देखकर मेरे मुंह लगना शुरू कर दिया था, मगर मैं किसी को भी ज्यादा सर नहीं चढ़ाता था क्योंकि इन सब की आदतों से मैं अच्छे से वाकिफ था। वो सब मतलब परस्त थे, सब के सब। मेरी सौतेली माँ को जब ये खबर मिली कि मैंने एक जिम्मेदार की बेटी से शादी कर ली है और मेरा होटल बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जल्द ही उसकी नई ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, तो वह ढेर सारी मिठाइयों और तहाइफ के साथ मेरे घर आ धमकी थी। मैं इस वक्त घर पर नहीं था। शाम को जब मैं घर आया तो इफ्रा ने बताया कि दोपहर से कोई औरत आई हुई है और वो कह रही है कि तुम्हारी माँ है। क्या यही तुम्हारी सौतेली माँ है? मैंने कहा हाँ वही होगी। मैं अंदर गया तो वो मज़े से इस घर को अपनी मलकियत समझकर लेटी हुई थी। मुझे उसका ये इस्तेहकाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे देखकर अपने चेहरे पर चलाक और लालची खुशामदी मुस्कुराहट लाकर उठी और मुझसे मिलने को आगे बढ़ी। मेरे सर पर हाथ रखना चाहा तो मैंने खुद को एक कदम पीछे कर लिया। फिर भी वो चरब जुबानी से बाज न आई और मेरी बीवी से झूठा प्यार जताने लगी। मैंने इफ्रा से कहा तुम अंदर जाओ। वो अंदर चले गई तो मैंने उसके लाए गए सारे तहाइफ उठाकर समेटे और तमाम शॉपर्स उसके हाथ में थमाकर कहा कि ये सब लेकर यहाँ से निकल जाएं और दोबारा यहाँ का रुख भी मत करना कभी भी। इस दिन के बाद मैंने इस बात का हर मुमकिन ख्याल रखा कि वो अय्यार मकार औरत अब कभी मेरी फैमिली के करीब ना भटके। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। मैं बहुत खुश था। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। मौसम बहुत अच्छा था। इफ्रा बारिश में भीगने की शौकीन थी। अब भी वो लॉन में बारिश एंजॉय कर रही थी। बारिश और गुजरते लम्हे के साथ तेज होती जा रही थी। मेरे कपड़े मुकम्मल भीग चुके थे, मगर मैं हर चीज़ से बेपरवाह वहीं खड़ा उसे तक रहा था। वो बारिश में खिलखिलाती मुझे बेखुद कर रही थी। मैं बस उसे देखे जा रहा था। कभी कभी मुझे लगता था कि वो मुझे इतनी अजीज हो गई है कि मैं उसके बिना सांस नहीं ले पाऊंगा। वो हर गुजरते दिन के साथ मेरे दिल के और करीब होती जा रही थी। मैं हमेशा उसे अपने पास ही रखना चाहता था। वो जैसी थी मुझे वैसे ही कबूल थी। शायद मैं उसे लफ्ज़ों में कभी नहीं समझा सकता था कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना चाहता हूँ उसे। वो अगर एक पल भी मेरी नज़रों से दूर होती थी तो मैं बेचैनी से उसे ढूंढता था। मैं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी के हर दुख, हर तकलीफ़ को समेट लूँ और उसे हरगिज़ कोई तकलीफ़ ना पहुँचने दूँ। इस पर कोई भी दुख पहुँचने से पहले मैं वो दुख खुद पर ले लूँ। इसकी आंख में एक भी आंसू ना आने दूँ। वो काफ़ी देर से बारिश में भीग रही थी। इससे पहले कि उसको ठंड लगती मैंने उसे आवाज़ दी, मगर उसने बारिश की आवाज़ में मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उसके पास गया और उसका हाथ थामकर उसे रोका। फिर मैंने उसे कहा कि चलो अंदर चलें, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो हमेशा की तरह मेरे बाजू से अपना सर टिकाकर साथ चलने लगे। मैंने अंदर जाने से पहले एक पल को आसमान की तरफ तशक्कुर भरी नजरें उठाकर देखा और अपनी ज़िंदगी को अपने साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। मेरी दुनिया मुकम्मल थी क्योंकि मेरी दुनिया मेरे साथ थी।